नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियों। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed. Session name is Organ of Government, Causes of Decline of Legislature, from Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan. We will discuss both languages, first in English, then after Hindi. Let's in English. The following are the reasons for the decline, collapse of the legislature. One by one. First point is increasing complexity and technical nature of government functions. The nature of administrative problems has become very complex due to the development of science and technology. Members of the administration are not technically qualified and competent. Therefore, it is that the legislature leaves the initial responsibility to the ministers to make laws in such cases. And second point is excess of workload and shortage of time. The government has to perform more tasks than before. These rising expectations of the citizens have increased the workload of the legislature. Third is delegation of delegated legislation. Under this power of delegated legislature, the legislature is left to the executive to make his own laws. The power to make necessary rules and sub-rules is borne by the executive. And fourth is one-party arrangement system. The powers of the legislature have been snatched away by the political parties in the true sense. In parliamentary democracy, only one party is in a position of dominance in the administrative and executive. The party which has majority in the administration in the executive of that party. So, due to support, the executive gets everything done by the legislature. Fifth is the dissolution of the following house by the executive. The executive has the right to advise the dissolution of the popular first house of the legislature by the Prime Minister and the order by the President. Due to its special authority to executive continues to receive the support of the legislature on all kinds of subjects. Sixth is executive prominence in the international area. After everything is decided by the executive, the treaty agreements etc. are approved by the legislature. And next is rise of positive state. In the present time, the government has started doing positive work instead of negative role.
It is become the responsibility of the government to develop the society multifaceted. Eighth is decision by the executive of the working of the legislature. When to call a legislature session, this is decided by the executive. The executive also plays an important role in determining the working procedure and agenda of the legislature. Ninth is administrative justice system. The system of administrative tribunal has allowed the executive to enter the field of justice, which is gradually increasing in powers. And last is placement of executive members in the executive. In all parliamentary governance countries, the executive is made up of the majority party of the legislature. The Prime Minister elects his council of ministers and inducts the most talented, qualified and influential members of the administration into the executive. The legislature almost becomes the leader. This session prepared by Digital Version 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर. लेट्स सी इन हिंदी. लर्नर्स, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वो है सरकार के अंग, व्यवस्थापिका के पतन के कारण या पराभव के कारण, कैसे भी आ सकता है. देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, जिसमें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. पहला जो है सरकारी कार्यों की बढ़ती जटिलता और तकनीकी प्रकृति. विज्ञान और तकनीक के विकास के कारण प्रशासनिक समस्याओं की प्रकृति बहुत ही जटिल हो गई है. व्यवस्थापिका के सदस्य तकनीकी रूप से योग्य और सक्षम नहीं होते हैं. इसलिए ये होता है कि व्यवस्थापिका ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए प्रारंभिक जिम्मेदारी मंत्रियों पर छोड़ देती है. नेक्स्ट, दूसरा है कार्यभार की अधिकता तथा समय की कमी. सरकार को पहले की तुलना में अत्यधिक कार्यों का निष्पादन करना होता है. नागरिकों की इन बढ़ती अपेक्षाओं से व्यवस्थापिका के कार्यभार में अधिक वृद्धि हो गई है. अगला है प्रत्यायोजित विधान की व्यवस्था. प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका अपने कानून बनाने के मूल दायित्वों को कार्यपालिका पर छोड़ देती है. आवश्यक नियम और उपनियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका द्वारा वहन किया जाता है. अगला है एक दलीय व्यवस्था. व्यवस्थापिका की शक्तियों को कार्यपालिका ने सही अर्थों में राजनीतिक दलों के माध्यम से छीन लिया है. संसदीय प्रजातंत्र में एक ही दल व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में प्रभुत्व की स्थिति में होता है. मान लीजिए मेजॉरिटी बीजेपी की है, चुनाव में अगर ज़्यादा उसके वोट हैं तो वो व्यवस्थापिका में भी है और कार्यपालिका में भी है. जिस दल का व्यवस्थापिका में बहुमत होता है उसी दल की कार्यपालिका होती है. इसलिए समर्थन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से सब कुछ करा लेती है. अगला है कार्यपालिका द्वारा निम्न सदन को भंग किया जाना. कार्यपालिका का ये अधिकार है कि वह व्यवस्थापिका के लोकप्रिय प्रथम सदन को भंग करने की सलाह प्रधानमंत्री के द्वारा आदेश राष्ट्रपति के द्वारा दे सकती है. अपने विशेष अधिकार के कारण कार्यपालिका सभी प्रकार के विषयों पर व्यवस्थापिका का समर्थन प्राप्त करती रहती है. अगला कार्य डिक्लाइन का. अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यपालिका की प्रमुखता. कार्यपालिका द्वारा सब कुछ तय होने के बाद संधि, समझौते इत्यादि का अनुमोदन व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है. अगला है सकारात्मक राज्य का उदय होना. वर्तमान समय में सरकारें
नकारात्मक भूमिका की जगह सकारात्मक भूमिका में होती है, अर्थात कार्य करती है। समाज का बहुमुखी विकास करना सरकार का दायित्व होता है। अगला है व्यवस्थापिका की कार्य पद्धति का कार्यपालिका द्वारा तय किया जाना। व्यवस्थापिका का अधिवेशन कब बुलाया जाए, इस बात का निर्धारण कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका के कार्य पद्धति तथा कार्यसूची के निर्धारण में भी कार्यपालिका अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है प्रशासकीय न्याय व्यवस्था। प्रशासकीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था में कार्यपालिका को न्याय क्षेत्र में प्रवेश दिला दिया है। इससे धीरे धीरे उसकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है। मतलब जो प्रशासकीय न्यायाधिकरण होता है उसमें IAS अधिकारी, RS अधिकारी वगैरह होते हैं, और वो सब किसके नियंत्रण में काम करते हैं, कार्यपालिका के। ठीक है, तो कहीं न कहीं कार्यपालिका है वो भी क्या है, न्यायिक मामले में आ रही है, या उसमें उसके अधिकार बढ़ रहे हैं। अगला है 10वां, व्यवस्थापिका के प्रतिभाशाली सदस्यों को कार्यपालिका में स्थान दिया जाना। देखिए, सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बहुमत दल में से ही बनाई जाती है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का चुनाव करते हैं और व्यवस्थापिका के सर्वाधिक प्रतिभाशाली योग्य और प्रतिभाशाली सदस्यों को कार्यपालिका में जगह दी जाती है। और इससे क्या होता है कि व्यवस्थापिका लगभग नेतृत्वहीन हो जाती है। ठीक है, जो योग्य हैं, सक्षम है, दक्ष व्यक्ति, वो तो कहाँ चले गए, कार्यपालिका में। ठीक है, और जो कम दक्ष हैं, जो विशेषज्ञ ज़्यादा नहीं है, वो कहाँ रह गए, व्यवस्थापिका में। तो इसलिए जब ये कानून बनाती कार्यपालिका, ठीक है, दक्षता लेवल का, तकनीकी लेवल का, तो उस समय फिर व्यवस्थापिका इन चीज़ों को समझ नहीं पाती हैं, तो कहीं न कहीं ये दिक्कतें आती हैं। ये जो डिजिटल सेशन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया सेशन है, आगे यूं ही आप इन सेशनों को देखते रहें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।